Let's start the session. It's 8:10 now. So, uh, in this is like a demo session where I will be talking about Azure and the DevOps, the careers, etc. So there will be some agenda that I will go through. So I will first talk about why the cloud is so famous nowadays. Then we will talk about some market players. Then why Azure you should adopt as a cloud solution. Then what we are going to offer in our course, why our course is different, who can attend this course, then what kind of profiles you can get after the completion of the course, and what are the benefits of learning from eVision. So these kind of things we are going to discuss. So I will not take much time of yours. I will try to complete everything within 1 hour. एक घंटे के अंदर अंदर कोशिश करूंगा मैं सब खत्म कर दूं, because this is like an informative session, so I don't want to take much time. So, before I begin, I want to understand from you that are you guys comfortable with English, or I should use Hindi or English both? Because I can only speak Both. Hindi and English. Both. Yeah, both. Please continue in English, sir. So that would be Yeah, great. English is better, right? Okay. Then what will I do? So I will use both the languages. My primary language would be English. Then I will also translate that into Hindi as well. Is that fine? Yeah, good, sir. Yes, sir. Yes, Good. So let's start. So I will first start with all the things. Then I will keep 15 minutes of buffer for the question answer rounds. Then you can come up with your questions. You can discuss with me, and I will clarify that. So let's start. So I will be first starting with my introduction, that who I am, what I do. So generally, my name is Rajesh, and if you talk about my technical experience into IT, so it's more than 10 years now. मतलब 10 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे IT में. So it's more than 10 years in the IT industry, and I started my first job with the company called Convergys. So Convergys is one of the international BPO where I started my job. It was in 2013, and I started the job over there as a tech support engineer. So it was a TSE role, technical support executive. वो मेरी पहली जॉब थी. So it's same like your desktop support profile. So I was responsible for the chat support and the voice support for the US and the Canadian customers. क्योंकि वो international BPO है, so वहाँ पे calls आती थी regarding the desktop issues, regarding the laptop issues. I used to handle that call. I used to provide the support over chat and through the call. So that was my first job. So it was complete night shift, complete graveyard shift. I was not able to adjust. I did not like that also. Career growth was very slow. So I spent some months, एक साल भी पूरा नहीं किया मैंने. I spent some month because few of the colleagues, they told me that they are there since last 5 years, 3 years, 4 years, and they could not get a promotion. Even the salary was not that much appreciated. So I decided to move on to the different domain. Then that time I did the course of hardware and networking. तो उस टाइम पे बहुत फेमस था वो hardware and networking course. So I did that, and I got the job in the company called American Express. So American Express is again one of the international BPO. There I got the profile of server support engineer. That was Windows Server 2003 and 2008. So 2003 विंडो और 2008 विंडो को मैं सपोर्ट करता था उस टाइम पे. एंड दैट टाइम इट वाज वेरी इजी टू गेट द प्रोफाइल ऑफ सर्वर्स. जब मैं सर्वर में आया था उस टाइम बहुत इजी था. It was in the year of 2014, so not very much people were doing these kind of things. So it was easy. I was lucky enough. I cracked the interview and I got the job. And that was a chat process. So I spent some time over there. It was more than 1 year. After that, I joined another company called Team Computers. There I joined as a system administrator of Windows Server and Linux. So I was handling Linux, Windows, and the virtualization was also there on EXSI platform. So EXSI भी handle करता था मैं. So that was 3 technology: EXSI on VMware, Linux administration plus Windows flavor.
आफ्टर दैट आई मूव टू द एनटीटी कंपनी, एनटीटी डेटा, आप लोगों ने नाम सुना होगा कुछ लोगों ने. सो दैट्स वन ऑफ द एमएनसी. And there I joined as an infrastructure specialist, and I was handling again Windows Server, Linux Server, and virtualization EXSI. And within that company, I transitioned to the cloud. एनटीटी डेटा के अंदर ही मैंने क्लाउड में ट्रांजिशन लिया. सो आई डिड वन ऑफ द सर्टिफिकेशन दैट टाइम in NTT. Then I had given one of the interview internally. तो देर इज ए आईजेपी प्रोसेस फॉर द ऑन रोल एम्प्लॉयज. एक आईजेपी करके प्रोसेस होता है, इंटरनल जॉब प्रमोशन. सो थ्रू द आईजेपी प्रोसेस आई अप्लाइड इन द सेम कंपनी फॉर द क्लाउड रोल. आई गॉट इंटरव्यूड and I got selected. Then I transitioned, I shifted to the cloud domain, and that was Azure. So till then to till now, I am right now the part of KPMG International. KPMG International मेरी current company है where I am the employee, and my designation there is subject matter expert, SME. So I am responsible for managing the cloud, automation, DevOps, and security architecture. So I handle a lot of stuffs in the cloud. I handle the migration part. I handle the high level architecture. In the orchestrators, I handle Kubernetes, OpenShift. Then I manage some of the Prometheus, Grafana kind of monitoring setup. Then I am responsible for the automation using Terraform, PowerShell, and Azure DevOps. So that's my role, and that is equivalent to the architect. So in cloud, I have around more than 6.5 years of experience. सिर्फ cloud में 6.5 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे cloud DevOps और automation पे काम करते हुए. So in eVision, I am working as a corporate trainer on weekends. On Saturday, Sunday, I work here as a freelance trainer. I provide the training to the candidates who are working in the real company in IT industry and they want to switch to the cloud domain. तो यहाँ पे मैं वीकेंड्स में ट्रेनिंग देता हूँ उन लोगों को जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी ना किसी टेक्नोलॉजी पे और वो क्लाउड में आना चाहते हैं. So for those people, I am giving the training. My full-time job is there in my company. That's a work from home profile. So I don't go to office. So that was a boring introduction about me. बहुत से लोगों को आधा समझ में भी नहीं आया होगा कि बोला क्या मैंने. But you have to bear with me. I don't have any choice. Introduction देना पड़ता है. So I have some certifications in Azure Cloud, in Microsoft servers, in ITIL and data center virtualization. So in Azure, I am AJ104, 305, AJ500, AJ400 certified. And my specialization is also there in Azure Cloud. मेरी जो expertise है, मैंने जो काम किया है, मेरा जो ज़्यादा experience है, it is into Azure Cloud. In my organization, I am supporting the Alibaba Cloud and AWS Cloud as well. But if you talk about my expert area, where I am expert, where I have a lot of expertise, so that is Azure Cloud. बाकी मेरे को AWS आता है, AWS को सपोर्ट करते हैं हम कंपनी में, AWS भी है हमारे पास, अलीबाबा क्लाउड भी आता है, बट मेरा जो ज्यादा एक्सपोजर एरिया है दैट इज Azure. सो आई एम द स्पेशलिस्ट ऑफ Azure क्लाउड. सो आई विल बी योर ट्रेनर, आई विल बी योर मेंटर थ्रू आउट द सेशन. आप जो भी सेशंस करोगे Azure में, DevOps में, आई विल बी योर ओनली ट्रेनर, आई विल बी द सिंगल ट्रेनर ओवर देयर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट ऑफ द थिंग्स. आगे की चीजों पे डिस्कशन करते हैं अब. सो आई विल नॉट टॉक मच, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेन पॉइंटर्स पे बातें करेंगे हम. सी व्हाई द क्लाउड इज फर्स्ट चॉइस फॉर बिजनेसेस. आजकल क्लाउड 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 क्यों हो रहा है ज्यादा. सो वी विल टॉक अबाउट दैट पार्ट. सो जनरली व्हाट हैपन्स व्हेन आई टॉक अबाउट द कंपनी, इन द कंपनी देयर इज अ डेटा सेंटर. हर कंपनी में कोई ना कोई डेटा सेंटर होता है. Data center means the location where we have the servers, where we have the network devices, where we have the storages. ये सब जैसे आप लोगों ने कंपनी में देखा होगा, there is a hub room, there is a network room, there is a server room. So that is a data center. Earlier what used to happen, the data center was physical. कंपनी पहले क्या करती थी, फिजिकल डेटा सेंटर लगाती थी, मतलब सर्वर्स खरीद के लाती थी, स्टोरेज खरीद के लाती थी,
राउटर स्विचेस खरीद के ला रही है, फायरवॉल खरीद के ला रही है. सो दे नीड ए स्पेस, दे हैव टू मैनेज देम, दे हैव टू हायर डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, सर्वर इंजीनियर्स, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, डेटाबेस इंजीनियर्स, एंड दे हैव टू मैनेज इट. सो दैट वाज ए कॉस्टली सेटअप. वो सब कॉस्टली था, उसमें खर्चा बहुत आता था. सो just to do the cost cutting, the companies have started to move their data center to the cloud. कोस्ट बचाने के चक्कर में कंपनी ने आज की डेट में क्या शुरू कर दिया है कि जो उनका डेटा सेंटर है उसको उठा के क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया है. क्लाउड मीन्स दे आर यूजिंग द डेटा सेंटर ऑफ ए डिफरेंट कंपनी. वो सब अभी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ. सो आज की डेट में कंपनी फिजिकल डेटा सेंटर नहीं लगाना चाहती बिकॉज ऑफ द कोस्ट. They want to save the cost. They want to focus on the business. So they have shifted their data center to the cloud. So आज की डेट में अगर उनको सर्वर्स चाहिए, उनको नेटवर्क अप्लायंसेस चाहिए, उनको स्टोरेज चाहिए, so they don't purchase that physically. They go to the cloud service providers. वो क्लाउड वाले बंदों के पास जाते हैं and they use those services on rent. वो उन सर्विसेज को रेंट पे यूज करते हैं. लेट्स सपोज आई नीड ए सर्वर फॉर 1 year. So I will go to the cloud service provider and I will use those services on the rent. So that is a cloud model. उसको हम cloud बोलते हैं. So in the cloud, the companies are not purchasing their physical data center stuffs. They are using it on the rent. अभी तो आप ये जान लो cloud के बारे में. So companies are hosting their infrastructure on the cloud nowadays because of the cost. बहुत पैसा बचता है कंपनी का. आई वुड से विद द क्लाउड द कंपनीज आर एबल टू से 60% ऑफ देयर ऑपरेशनल कॉस्ट. 60% कॉस्ट कंपनी की बचती है अगर वो क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर रन कर रहे हैं आज की डेट में तो. सो दैट इज अ बिगेस्ट पॉइंट टू शिफ्ट टू द क्लाउड. क्लाउड पे जाने का सबसे बड़ा रीजन यही है. एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंपनीज हैव बीन शिफ्टेड टू द क्लाउड मॉडल. ग्लास डोर पे अगर आप जाके सर्च करोगे गूगल पे, सो यू विल फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ फिगर्स. छोटी बड़ी मिड साइज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव अडॉप्टेड द क्लाउड मॉडल. सो क्लाउड कुछ नया नहीं है. क्लाउड इज वेरी ओल्ड थिंग. इट वाज देयर सिंस 2006. 2006 से मार्केट में, बट सिंस लास्ट 5 to 7 years द क्लाउड हैज बिकम वेरी वेरी फेमस बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर. पहले लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, अब करने लगे हैं. अब बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो गया है क्लाउड. So that is one of the reason. Second reason is location independent. Cloud is location independent. It simply means कि मेरा ऑफिस अगर मुंबई में है and I have another branch in let's say Pune location also. So I don't have to create one of the physical branch in the Pune. मेरा एक हेड ऑफिस मुंबई में है. My customers are also there in Pune location. So मुझे पुणे में फिजिकल ऑफिस लगाने की जरूरत नहीं है. If my users are based in Pune, I can just create the servers in the Pune location on the cloud. और उसके लिए मुझे फिजिकल ऑफिस नहीं लेना. बट इफ आई हैव ए फिजिकल डेटा सेंटर तो मुझे फिजिकल डेटा सेंटर पुणे में लगाने के लिए वहां पे एक ऑफिस भी लेना पड़ेगा. सो अगेन देर इज अ कॉस्ट फैक्टर. सो क्लाउड प्रोवाइड्स यू द लोकेशन इंडिपेंडेंस. जिस जगह पे आपके यूजर्स ज्यादा है, यू कैन डिप्लॉय योर सर्वर्स इन दैट लोकेशन विदाउट हैविंग द फिजिकल ऑफिस. क्लाउड प्रोवाइड्स यू द इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलिटी. इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलिटी का मतलब है आज आपके सर्वर्स चल रहे हैं लेट्स से इन इंडिया. टुमारो इफ यू वांट टू रन इट इन लेट्स से यूएस लोकेशन, सो यू कैन इजीली डू द माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू यूएस. इंडिया के सर्वर्स को उठा के आप यूएस में माइग्रेट कर सकते हो. बट इफ इट इज ए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया के फिजिकल सर्वर्स को यूएस में माइग्रेट करना दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. देयर विल बी लॉस, देयर विल बी कंप्लायंस, देयर विल बी कॉस्ट. बट इफ इट इज ऑन द क्लाउड, क्लाउड में आप एक लोकेशन को दूसरे लोकेशन में इजिली माइग्रेट कर सकते हो. इफ माई सर्वर्स आर टुडे रनिंग इन इंडिया लोकेशन, my office has been shifted to US, let's suppose, so I can easily migrate my India servers to the US. So it provides us the infrastructure mobility. मतलब IT का infrastructure, IT का data center कभी भी जब मेरा मन करे उठा के दूसरी लोकेशन में मूव कर सकते हैं. That is the power of cloud. That is also one of the reason for the companies to go to the cloud. Another reason to go to the company on the cloud is downsizing and upsizing. क्लाउड में अगर आप कोई सर्वर्स चला रहे हो, आज मुझे 100 सर्वर्स की जरूरत है, तो आई एम यूजिंग 100 सर्वर्स.
tomorrow if I don't need 100 of servers, I can downsize them. मुझे मान लो 10 servers कम करने हैं तो मैं कर दूंगा. I only have to pay the rent of 90 servers now. Earlier I was paying the rent of 100 servers because I needed 100 servers. आज मुझे 90 servers की requirement है, 10 कम कर दूंगा and I will only pay for the 90 servers. That is again one of the biggest advantage of using the cloud. कि क्लाउड में आप जितना यूज कर रहे हो उतना ही पे करना है. बट अगर वो फिजिकल होता, 100 सर्वर्स मैंने परचेज कर लिए, अब मैं उसको यूज करूं ना करूं, बट स्टिल आई विल हैव टू पे द मेंटेनेंस कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंजीनियर सैलरी एटसेट्रा. बट क्लाउड में जितने सर्वर मुझे आज चाहिए, आई कैन यूज इट टुडे. टुमारो इफ आई नीड मोर सर्वर्स, आई कैन यूज मोर सर्वर्स एंड आई कैन पे द रेंट अकॉर्डिंगली. तो दैट इज वन ऑफ द कॉस्ट फैक्टर. तो ये भी एक फायदा है क्लाउड पे जाने का कंपनी को. बाकी बजटिंग कर सकते हो आप, कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो क्लाउड पे. लेट सपोज आई वांट टू रन 100 सर्वर्स ऑन द क्लाउड एंड आई विल रन इट फॉर 20 आवर्स इन ए डे. एक दिन में 100 सर्वर चलाना चाहता हूँ 20 घंटे के लिए. सो आई कैन कैलकुलेट माई अप्रोक्सीमेट बिल and accordingly I can decide my budget. Just like in Azure, there is a pricing calculator. जैसे Azure मान लो आप यूज कर रहे हो, so Azure में होता है Azure pricing calculator. अब मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि अगर मैं Azure में एक कंपनी के अंदर सर्वर चलाऊंगा, लेट सपोज देयर इज a वर्चुअल मशीन मतलब सर्वर, एंड आई वांट टू रन इट इन लेट्स से विंडोज इन्वायरमेंट एंड आई वांट टू रन इट इन यूके साउथ लोकेशन. यूके साउथ में मुझे सर्वर चाहिए, विंडोज पे चाहिए, एंड आई वांट टू यूज लेट सपोज 3.5 GB रैम, 2 cores ऑफ CPU. देन हाउ मच विल बी द बिल. सो मैं यहाँ पे आवर्स भी डाल देता हूँ दैट आई वांट टू यूज इट फॉर 10 hours ओनली. 10 घंटे के लिए यूज करूंगा मैं, एंड आई ओनली नीड वन सर्वर. सो व्हाट विल बी द बिल. सो इफ यू स्क्रॉल डाउन सो यू कैन सी इट विल बी अराउंड $1.98 पर मंथ. मतलब एक मंथ में आपको एक सर्वर का इतना बिल देना है अगर आप उसको इस हिसाब से चलाते हो तो. लेट मी शो यू इन द इंडियन करेंसी. तो इन इंडियन करेंसी यू विल हैव टू पे अराउंड 166 रुपीज अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन पे सर्वर को चलाते हो तो. सो यू कैन इजिली ट्रैक एंड कैलकुलेट योर बिलिंग्स. आप अपना एस्टिमेट, अपना बजट पहले से डिसाइड कर सकते हो. यू कैन इजिली क्रिएट योर बजट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन रन योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. फिजिकल डेटा सेंटर में ये पॉसिबल नहीं है. वहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कितना खर्चा आ जाएगा. 100 सर्वर्स खरीदने हैं तो खरीदने हैं, यूज करे चाहे ना करे. बट इन द क्लाउड यू कैन डिफाइन योर एस्टिमेट. सो इट इज विद एवरी क्लाउड, नॉट ओनली इन एज्योर. AWS के ऊपर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो यूजिंग AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर. इन एज्योर ऑल्सो यू कैन डू द कैलकुलेशन. सो क्लाउड हेल्प्स अस टू डू द बजटिंग. क्लाउड के थ्रू कंपनी बजट बना सकती है एंड अकॉर्डिंगली दे कैन इन्वेस्ट इन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. और यही वजह है कि क्लाउड के जो इंजीनियर्स होते हैं देयर सैलरीज आर वेरी हाई बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन सेविंग द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. जो क्लाउड का बंदा है, द सेम पर्सन इज मैनेजिंग द सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम पर्सन इज मैनेजिंग द नेटवर्क ऑन द क्लाउड, सेम पर्सन इज मैनेजिंग द स्टोरेज ऑन द क्लाउड, सेम पर्सन इज हैंडलिंग द सिक्योरिटी ऑन द क्लाउड. सो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड एडमिन हैंडल कर रहा है अगर. So that is the reason their salaries are high because they are contributing in the saving of the cost. उनकी वजह से कंपनी का खर्चा भी बच रहा है and they are handling everything on the cloud environment. So that is why they are highly paid engineers in the market. इस वजह से उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं. So that's a good thing. If you are running your infrastructure on the cloud, you don't have to worry about any kind of maintenance or upgrade. क्योंकि सर्वर तो आप रेंट पे चला रहे हो ना. If you are using the server from a different company on rent, so you don't have to worry about any kind of maintenance. जिसका आप सर्वर यूज कर रहे हो रेंट पे, they will do the maintenance. If you are using the server of AWS, then Amazon will do the maintenance. If you are using the server of Azure, then Microsoft will do the maintenance. That is also one of the reason. Another reason for the business to go to the cloud is all the future applications are cloud native. फ्यूचर में जितनी भी एप्लीकेशन सब बन रही है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाउड. वो सब क्लाउड के ऊपर बन रही है. जस्ट लाइक फ्यू एग्जांपल्स आई वुड लाइक टू गिव. सो AI सुना होगा आप लोगों ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी, ओपन एआई, जितने भी आप चीजें सुनते हो ना आज की डेट में, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस इंजीनियरिंग, सो देयर बेस इज क्लाउड। एवरीथिंग रन्स ऑन द क्लाउड नाउ एडेज। आज की डेट में प्लस फ्यूचर में जितने भी एप्लीकेशंस कोड हो रहे हैं, दैट इज क्लाउड नेटिव। सो इस वजह से भी कंपनी की मजबूरी है, दे आर इन द कंपल्शन टू मूव टू द क्लाउड। और इसी वजह से जो आईटी में लोग काम करते हैं, दे ऑल्सो नीड टू मूव टू द क्लाउड, दैट इज देयर कंपल्शन। क्योंकि जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे मूव होने लग गया है, सो कंपनी आर वेरी लिमिटेड with the network engineers, there are very limited server administration jobs, there are very limited security jobs। क्लाउड पे है तो क्लाउड से रिलेटेड जॉब्स निकल रही है इस वजह से। ऑल द डेवलपर्स, they are working on the cloud infrastructure for writing their code, because all the applications are cloud native। So if I show you something, there is a Azure portal that will be used for the training। कंपनी में यही वाला पोर्टल यूज होता है जिस पे आप लोग काम करोगे अभी कोर्स के टाइम पे। So same portal is used in the company। This is my pay as you go portal। Let me sign in first। तो कोड मैंने अपने पोर्टल में सिक्योरिटी लगा रखी है, एक्चुअली कोड मांगता है। See, this is one of the cloud portal, and the same portal is used in the company also, and same portal you will use during the training also। यही same exact portal कंपनी में यूज होता है Azure सर्विसेज रन करने के लिए। So this is one of the Azure cloud। Now if I show you something, if I go to all services here, तो यहाँ पे देखो जितनी भी चीजें आप सुनते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी एआई, एआई इज हियर, IoT technology is here, DevOps is also here, identity is here, migration activity is here। तो जितनी भी चीजें आप लोग सुन रहे हो मार्केट में, that robotics is there, artificial intelligence, machine learning, the base is cloud। वो cloud पे ही डेवलप होती है। इट डजेंट मैटर विच क्लाउड इट इज, एज्योर वाले एज्योर पे चला रहे हैं, AWS वाले AWS पे चला रहे हैं, बट इट इज ऑन द क्लाउड। So present and future applications, all the codings, it is on the cloud। जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, they will be on the cloud। even they are right now, आज की डेट में भी वो सब क्लाउड पे ही है। So it is compulsory for every IT people to learn the cloud nowadays, क्योंकि जॉब्स कम हो गई है मार्केट में because of the advent of cloud and DevOps। तो ये जो नेटिव जॉब्स होती थी, सपोर्ट लेवल की जॉब्स वेयर यू गाइज आर वर्किंग, सो दैट हैज बीन लिमिटेड नाउ, एंड इन फ्यूचर इट विल बी completely destroyed because of the artificial intelligence on the cloud। ये वाला काम जो आप करते हो आज की डेट में, डेस्कटॉप सपोर्ट, सर्विस टेस्ट, सो दैट विल बी रिड्यूस्ड। क्योंकि चैट जीपीटी में जाके लोग टाइप कर लेंगे, माई लैपटॉप इज स्लो व्हाट टू डू, और बंदा खुद ही उसको ट्रबल शूट कर लेगा थ्रू द को पायलट। So that is going to happen, and that is why these kind of jobs are very reduced in the market। इस वजह से ये सब जॉब्स कम हो गई है, और भी हो जाएगी अभी आने वाले विद इन 4 to 5 years। एंड द ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। सो लर्निंग द क्लाउड, वर्किंग ऑन द क्लाउड हैज बिकम मैंडेटरी फॉर एवरीवन। इसलिए मैंने भी क्लाउड पे स्विच कर दिया था सही टाइम पे, एंड पीपल शुड ऑल्सो प्लान। नाउ द थिंग इज, इफ आई वॉन्ट टू गो टू द क्लाउड, अगर मुझे क्लाउड पे जाना हो, देन विच क्लाउड आई शुड पिक, मैं किस क्लाउड पे जाऊं, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन। अभी मैंने एडवांटेज तो बता दिए दैट एवरी कंपनी इज गोइंग टू द क्लाउड, बट इफ इन केस आई वांट टू स्विच टू द क्लाउड, देन विच क्लाउड आई शुड पिक। मार्केट में बहुत सारे क्लाउड्स है, अगर मुझे क्लाउड में जाना पड़ा तो मैं कौन सा क्लाउड लूं। सो इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट क्लाउड्स नाउअडेज, सो वी हैव अ लॉट, बहुत सारे हैं। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी देयर इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, देयर इज Amazon Web Services, Google Cloud, Salesforce, Alibaba, IBM, and we have another clouds also। छोटे बड़े बहुत सारे क्लाउड्स है मार्केट में, एंड एवरी क्लाउड इज यूज्ड इन द कंपनी। कहीं ना कोई क्लाउड यूज हो ही रहा है। But if I talk about from the job perspective, from the market perspective, so there are two cloud
विच इज लीडर, दो क्लाउड ऐसे हैं जो लीडर है मार्केट में. द फर्स्ट क्लाउड विच इज लीडर इन द मार्केट इज AWS. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ Amazon कंपनी एंड इट इज द फर्स्ट क्लाउड इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला क्लाउड भी यही था. द सेकेंड क्लाउड विच इज लीडर इन द मार्केट इज Microsoft Azure and it is the product of Microsoft company. And you all know Microsoft. Microsoft is world's biggest software provider. वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक है माइक्रोसॉफ्ट. तो उसी का क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. एंड AWS क्लाउड है Amazon कंपनी का, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंटरनेट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम अदर क्लाउड्स ऑल्सो. गूगल का भी अपना क्लाउड है, GCP. Oracle also have their cloud. अलीबाबा क्लाउड भी एक है विच इज हाईली यूज्ड इन चाइना लोकेशन. चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन का क्लाउड है अलीबाबा. वी कॉल इट एली क्लाउड एंड दिस इज वेरी फेमस इन द चाइना मार्केट. तो चाइना के अंदर अलीबाबा क्लाउड ज्यादा यूज होता है. देन वी हैव सम स्मॉल स्टफ्स. IBM का क्लाउड है, रैक स्पेस ऑल्सो हैव देयर क्लाउड, VMware ऑल्सो हैव देयर क्लाउड. बट ऑलमोस्ट every company is either using AWS और Azure. या तो आपको Azure देखने को मिलेगा या तो AWS. ये जो बाकी के क्लाउड्स है ये सब इनके साथ देखने को मिल सकते हैं आपको बहुत ही छोटे लेवल पे. बट दीज टू क्लाउड्स विल बी अवेलेबल ऑन द मास स्केल. So from the job perspective, if you are looking for a cloud, if you want to switch to the cloud, then I would recommend either choose AWS or choose Azure. या तो AWS चूज करो या Azure चूज करो. Now, if you ask me the question that between AWS and Azure, which cloud is good? Which cloud should I pick? Then let me clarify that also. इतने सारे क्लाउड में मैंने बोला या तो AWS चूज करो जॉब के लिए, करियर के लिए, या तो Azure. बट इफ आई हैव टू चूज वन, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही करूंगा, देन विच वन इज द राइट क्लाउड? तो मैं कौन सा करूं? सो बोथ द क्लाउड्स आर ओके. दे हैव हाई डिमांड इन द मार्केट. दे हैव वेरी हाई अर्निंग पोटेंशियल. Salaries are very good. Career progresses are also very good. But there are some differences. So let me talk about some of the differences here. फ्रॉम द जॉब परस्पेक्टिव, फिर मैं बिजनेस परस्पेक्टिव के बारे में आपको बताऊंगा. फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई फ्रॉम द जॉब परस्पेक्टिव कि जॉब के लिए कौन सा क्लाउड बेस्ट है. सी, आई विल जस्ट गिव यू वेरी टेक्निकल क्लैरिफिकेशन हियर बिटवीन AWS एंड Azure कि मैं Azure क्लाउड सीखूं या AWS का क्लाउड सीखूं. सो इफ समवन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन द AWS क्लाउड, दैट इज ऑल्सो ओके. बट बिफोर द जॉब पे जाने से पहले, it's not something that you will do the course and you will get the job directly. There are some prerequisites. There are some basic requirements that you have to fulfill. कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है जॉब लेने के लिए. जैसे जब आपने डेस्कटॉप सपोर्ट या सर्विस डेस्क पढ़ा होगा फॉर द जॉब, तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पढ़ के आपको जॉब मिल गई होगी. You should know the operating systems, you should know the fundamentals of networking, you should know the application structure. ये सब चीजें पता होनी चाहिए. यू शुड नो द सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, तब जाके आपको डेस्कटॉप या सर्विस डेस्क में जॉब मिली. सो सेम गोस विद द क्लाउड ऑल्सो. क्लाउड इज अ डोमेन. सो इफ यू वांट टू वर्क इन द क्लाउड डोमेन and if you want to go with AWS cloud, so AWS has some prerequisites. Before AWS, you should be very expert in the Linux, क्योंकि AWS क्लाउड पे लिनक्स ज्यादा चलता है. सो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन द लिनक्स मैनेजमेंट. लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप AWS पे जाने वाले हो तो. नाउ इन द लिनक्स वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स. लाइनक्स के अंदर भी अलग अलग फ्लेवर्स है. वी हैव रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स यूज्ड इन द कंपनी. वी हैव उबंटू यूज्ड इन द कंपनी. वी हैव CentOS यूज्ड इन द कंपनी. So you should be great with these three flavors and every flavor have a different command. ऐसा नहीं है कि आपने एक सीख लिया तो इसको मैनेज कर लोगे. कमांड स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट. देर आर 40% डिफरेंशिएशंस इन द कमांड. इसको कर लोगे तो इसकी कमांड 40% अलग है, इसकी 40% अलग है. सो यू शुड बी गुड इन मैनेजिंग दीज थ्री लाइनेक्स. दैट इज फर्स्ट ऑफ द थिंग अगर आपको AWS पे जाना है तो. सेकेंड थिंग इज you should be very good in the scripting
आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए. स्क्रिप्टिंग मीन्स यू शुड नो हाउ टू राइट द ऑटोमेशन. आपको ऑटोमेशन कोड लिखना आना चाहिए, एंड फॉर दैट यू मस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन. पाइथन के बेसिक्स पता होने चाहिए. सो आई वुड से प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए फॉर द स्क्रिप्टिंग. इफ यू नो दीज थ्री थिंग्स, देन अनदर थिंग वुड बी टू नो अबाउट ओपन सोर्स एप्लीकेशन. आपको ओपन सोर्स एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए प्रैक्टिकली. आफ्टर दैट इफ यू विल डू द AWS कोर्स, देन यू विल गेट द जॉब. तब आपको जॉब मिल जाएगी. बट इफ समवन is not interested in the Linux, in the scripting, in Python, in the CLI, यहाँ पे ग्राफिक्स का रोल बहुत कम है, then I will not recommend AWS to those people. जिनको लगता है CLI is their bread and butter, CLI देख के उनको मजा आ जाता है, they understands the basic of programming. प्रोग्रामिंग में लूप क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशंस कैसे करना है, कैसे काम कर रहा है, व्हाट इज द सिंटैक्स, व्हाट इज द एरे, ये सब प्रैक्टिकली पता है, देन AWS इज ओके. क्योंकि AWS मोस्टली यूज किया जाता है ओपन सोर्स एप्लीकेशंस के लिए, एंड फॉर ओपन सोर्स लाइनक्स इज द बेस. तो इफ यू आर ओके विद दीज थिंग्स, गो विद द AWS. AWS में आप क्लाउड का कोर्स करके यू कैन गेट द जॉब, दैट इज फाइन. इफ द CLI डज नॉट इंटरेक्ट यू, अगर CLI देख के आपको मजा नहीं आता, डोंट वेस्ट योर मनी इन द AWS कोर्सेज. तब मत करना, तब जॉब नहीं लगेगी. कोर्स तो कहीं से भी कर लेते हैं लोग, बट व्हेन यू विल गो टू द जॉब मार्केट, नो वन विल गिव यू द जॉब बिकॉज योर प्री रिक्विजिट्स आर नॉट क्लियर. और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ लोगे और जॉब लग जाएगी. प्रैक्टिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. क्योंकि ग्राफिक्स की चीजें तो एक बार कर लेते हो तो चलो दिमाग में रहती है, CLI की चीज एक बार कर लोगे, कमांड शाम को भूल जाओगे. सो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली डू द प्रैक्टिस. दैट इज वन ऑफ द थिंग. If you are not interested here, then the Azure is the another cloud. So Azure also had very good market, even bigger than the AWS. आज की डेट में AWS से बड़ा market Azure के पास है. It has a lot of job opportunities. Their DevOps is also very great, and their base is also very great. And if someone is interested in Azure, तो उस बंदे को भी कुछ आना चाहिए. उसको क्या आना चाहिए? So the person should know how to operate the Windows server. विंडोज सर्वर कैसे हैंडल करते हैं वो उसको आना चाहिए. इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन द एज्योर क्लाउड, द पर्सन शुड आल्सो नो द एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन .NET. .NEट का मतलब वही आपका विंडोज प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म. द पर्सन should understand the networking architecture, which is called basics of networking on plus. Then if you will do the Azure course, then it will benefit you for the job opportunities. And Azure is the cloud which is used in the Fortune 500 organization. वर्ल्ड की जो बिगेस्ट कंपनीज होती है वहां पे Azure चलता है. आई विल शो यू द प्रूफ ऑल्सो. इट्स नॉट ए वर्बल कम्युनिकेशन. आई विल शो यू द प्रूफ. वर्ल्ड की जो Fortune 500 ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वर्ल्ड की जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दे यूज Azure, नॉट AWS. क्योंकि AWS में कुछ लिमिटेशंस है, देयर आर सम वीकनेसेस. आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो. So from the job perspective, if you have these skills, if your Linux is strong, then go with AWS if you want to. If you are not here, if you are looking for a job where you can start as a cloud engineer and without having the scripting and Python kind of knowledge, then I would recommend Azure. दोनों में जॉब है, अच्छी जॉब है. Azure has bigger opportunities nowadays. वो क्यों है अभी मैं बताऊंगा. So from every cloud perspective, two clouds are the leader, AWS and Azure, and I would recommend Azure from your level. जो अभी आप काम कर रहे हो on the support profiles. So if you want to transition to the cloud, so Azure will be easier for you. क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वो विंडोज के ओएस को सपोर्ट करते हो आप लोग, विंडोज 8, विंडो 10, विंडो 11, and you are also supporting some active directory features, some basic applications on the .NET. So आप लोगों का exposure already वहाँ पे है. So you are the Microsoft guys. So Azure will be the good cloud opportunity for you. So you can easily learn it. You will be familiar with the interfaces. So I would say जिनको start करना है, Azure is okay.
And if someone is interested in working in the biggest companies on the earth, then again Azure is okay. पहले AWS की बहुत डिमांड थी, but because of some weaknesses, the companies have been moved to the Azure cloud. अब Azure ही क्यों? Why the companies are going to the Azure? एक तो मैंने जॉब पर्सपेक्टिव से बताया that why you should pick the Azure cloud, because it is easy for you from your past experiences. Azure आपके लिए easy है. But why the companies are choosing the Azure? कंपनी क्यों Azure के पीछे पागल हो रही है AWS को छोड़ के? So I will open one of the site here. I am going to the Google. मैं Google पे जा रहा हूँ. And my spellings are very bad actually. Here I will search for why or AWS versus Azure. AWS versus Azure करके सर्च करते हैं. So there is a official link of the Microsoft, azure.microsoft.com. Microsoft का official link है यहाँ पे. If I will open this, this is not a blog. This is the real link. This is the official site of Microsoft, and here you can see there is a comparison between Azure and AWS. इन दोनों के बीच में comparison है. And here you can clearly see that if you are using the Azure in the company will have to pay the less charges. Azure सस्ता है as compared to AWS. साफ साफ लिख दिया उन्होंने. It is one of the real site of Microsoft and they are claiming. ब्लॉग में तो कोई कुछ भी लिख देता है, but this is the original site of Microsoft and they are comparing with the name that we are cheaper as compared to AWS. इन्होंने यहाँ पे देखो कंपेयर ही करके रख दिया है पूरा, that if you will run any server in AWS you have to pay $198 and if you will run the same server in Azure you have to pay $13 only. So Azure is 93% less as compared to AWS. सीधा सीधा कंपैरिजन. और इसको दिखाने के लिए रियल में प्रूफ और गट्स होने चाहिए. माइक्रोसॉफ्ट इज डूइंग इट बिकॉज इट इज रियल, वरना AWS केस नहीं कर देता इनके ऊपर. इट इज रियल. So Azure is 93% cost effective as compared to the AWS services. That is one of the biggest reason for the company to choose the Azure. एक तो ये reason हो गया कि खर्चा कम है. Another reason is it is used by Fortune 500 companies. वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज होती है, more than 95% of the Fortune 500 companies are using Azure. ये भी देखो ऑफिशियली लिखा हुआ है उन्होंने. It's not a fake thing. It's a real site. It is officially mentioned. कि हमारा क्लाउड वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में मोर देन 95% ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग इट. तो एज्योर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है बड़ी कंपनीज में. सम नेम्स आर आल्सो मेंशन्ड हियर. और इनके जो डेटा सेंटर लोकेशंस है, द लोकेशंस ऑफ एज्योर क्लाउड, दे आर नंबर 1 इन दैट. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोकेशंस पे एज्योर के क्लाउड है इस टाइम पे. डबल देन द AWS से डबल. In AWS it is 55, in Azure it is 135 plus. इतने ज्यादा लोकेशंस पे इनके डेटा सेंटर चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के. सो सपोर्ट इज वेरी गुड. सो आई एम गिविंग यू दिस लिंक. ये पूरा लिंक मैं आपको दे रहा हूँ चैट बॉक्स में. यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दिस साइट. आप इसको पढ़ो, समझो, आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी. मैं पूरा पढ़ पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, दैट विल बी बोरिंग. सो आई विल डिस्कस सम मोर बेनिफिट्स. इसके अलावा मतलब सस्ता है, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही है, सबसे ज्यादा डेटा सेंटर इनके पास है. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देयर आर अनदर बेनिफिट्स. इसके अलावा भी कुछ अलग बेनिफिट्स है. तो और क्या बेनिफिट्स है एज्योर यूज करने के? सो यूजर बेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. माइक्रोसॉफ्ट का यूजर बेस पहले से ही स्ट्रॉन्ग है. आप जिन कंपनीज में काम करते हो, यू कैन क्लियरली सी दैट दे आर यूजिंग विंडोज. वहां पे आपको विंडो ज्यादा देखने को मिल रहा है. विंडोज क्लाइंट, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी. सो विंडोज बहुत ज्यादा यूज होता है मैसिव स्केल पे एमएनसीज के अंदर बिकॉज ऑफ यूजर फ्रेंडली नेचर. तो यूजर का माइक्रोसॉफ्ट बेस बहुत ज्यादा है. इवन द सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग इन द कंपनी, MS ऑफिस, टीम्स, शेयर पॉइंट, ये सब जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. वो भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड बिगेस्ट डेटाबेस, अगर मैं वर्ल्ड के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर डेटाबेस की बात करूं, सो दैट इज SQL.
एंड एसक्यूएल इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. सो माइक्रोसॉफ्ट का बेस पहले से ही स्ट्रांग है, एंड दैट इज द रीजन इफ एनी कंपनी वांट्स टू यूज द क्लाउड दे गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस टू एज्योर. क्योंकि उनका बेस ही माइक्रोसॉफ्ट पे चल रहा है, तो एज्योर को वो इसलिए चूज करते हैं क्योंकि एज्योर ही माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है. दे विल गेट द डिस्काउंटेड प्राइस एंड द सपोर्ट विल बी वेरी गुड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के साथ ज्यादा कंपैटिबल होता है. इंटीग्रेशन विल बी गुड, सपोर्ट विल ऑल्सो बी वेरी गुड. अगर वही चीज आप एडब्ल्यूएस पे लेके जाओगे तो एडब्ल्यूएस एक अलग प्रोडक्ट हो गया. उस पे आप विंडोज के सर्वर चलाओगे, उसके ऊपर आप डॉट नेट एप्लीकेशन चलाओगे, एमएस ऑफिस रन कर रहे हो, आप अपने टीम्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, सो सपोर्ट पार्ट विल बी वेरी लेस प्लस कॉस्ट विल बी वेरी हाई. एसक्यूएल चलाओगे आप एडब्ल्यूएस पे, कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी. बट वही चीज अगर आप एज्योर पे चला रहे हो, बिकॉज दैट इज देयर ओन प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ही उनका है, सो दे विल ऑफर यू मोर डिस्काउंट. इस वजह से एज्योर सस्ता है. ये जो यहाँ पे मेंशन किया है ना 93% लेस चार्जेस है एज्योर में, वो इसलिए सस्ता है क्योंकि जो भी एप्लीकेशन, जो भी ओएस, जो भी प्लेटफॉर्म आप चला रहे हो ऑलरेडी विंडो का है वो, तो विंडो की चीज को विंडो के क्लाउड पे ही चला रहे हो आप, सो ऑफ कोर्स देयर विल बी लेस चार्जेस. तो इसलिए ये सस्ता है, और एडब्ल्यूएस के पास अपना कुछ है नहीं, तो दैट इज द रीजन इट इज कॉस्टली. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन. बाकी पुराने एप्लीकेशन सारे माइक्रोसॉफ्ट पे ही चलते हैं ऑलरेडी. मैंने आपको बताया जितने भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो कंपनीज में, डबल क्लिक, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, दैट इज डॉट नेट. डॉट नेट इज अगेन द प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. सो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर एज्योर क्लाउड के साथ ज़्यादा कंपेटिबल है. इंटीग्रेशन विद द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ये सब चीज़ें अभी मैं बताया आपको. एज्योर सस्ता है. Another advantage of using the Azure is Azure will charge the customer on per minute basis, whereas AWS will charge you on the hourly basis. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, if I will run any server in Azure, अगर मैंने Azure पे कोई सर्वर रन कर दिया, let's say for 30 minutes, so I have to only pay the bill of 30 minutes. But the same server, if I will run it on AWS and if I will use it for 30 minutes, so I have to pay the bill of 1 hour. पूरे 1 घंटे का बिल देना पड़ेगा. Because AWS billings works on the hourly basis. आप चाहे उसको 30 मिनट यूज कर लो, 1 घंटे का पूरा बिल देना पड़ेगा. But in Azure, if you will use it for 30 minutes, you just have to pay the bill of 30 minutes only. So again, cost बच रही है कंपनी की. अगर आपने एज्योर पे कोई सर्वर 1 hour 30 minutes तक यूज कर लिया, सो यू ओनली हैव टू पे द बिल ऑफ 1 hour 30 minutes. बट अगर आपने एडब्ल्यूएस पे 1 hour 30 minutes तक कोई सर्वर चलाया, सो यू हैव टू पे द बिल ऑफ 2 hours. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन. इस वजह से भी कंपनी एज्योर को ज्यादा प्रेफर कर रही है. और अभी मैंने आपको बताया एज्योर के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स है देन एनी अदर क्लाउड इन द अर्थ. बाकी पैस सर्विस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एज्योर का प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट सारे के सारे कंपनी में यूज हो रहे हैं. सो ये सब मोटी मोटी बात हो गई. इफ आई टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज ऑलरेडी इन यूज एंड दे बिलोंग टू माइक्रोसॉफ्ट, सो ये सारे नाम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब के सब माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है. एंड इस वजह से जो कंपनी इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है दे प्रेफर एज्योर, क्योंकि उनको कंपैटिबिलिटी मिलती है, सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है. तो कुछ नाम आपने सुने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, एससीसीएम सुना होगा आप लोगों ने, पावर शेल, विंडो सर्वर, ऑफिस 365, विजुअल स्टूडियो कोड इज यूज बाय द डेवलपर. जो लोग डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दे यूज द टूल विजुअल स्टूडियो कोड, दैट इज ए माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट. डेवलपर जो प्लेटफॉर्म यूज करता है कोड रखने के लिए, गिटहब, दैट इज ए माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट. ओपन एआई, जैसे चैट जीपीटी है, ऐसे ही आपका एज्योर ओपन एआई है, दैट इज ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट. सो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इन यूज इन द कंपनी. ये सब चीजें कंपनी में ऑलरेडी चल रही है, एंड दैट इज द रीजन दे गिव द प्रेफरेंस टू एज्योर. इस वजह से वो एज्योर को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं फॉर द कंपैटिबिलिटी फॉर द क्लाउड. सो इट इज damn sure that Azure is the best cloud nowadays, and in the future also it is going to be the best, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. तो अभी भी बेस्ट है, फ्यूचर में भी बेस्ट होगा. इट इज सरपासिंग द एडब्ल्यूएस, और स्विच करना भी इजी है बिकॉज ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोस्ट ऑफ द टाइम. तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू start your cloud journey with the Azure, because it will be easy for you, and I am the experienced person in the industry, so I would bet Azure will be the good starting point for everyone.
मतलब स्टार्ट करना भी इजी होगा अगर कोई क्लाउड में एंट्री ले रहा है तो, सरवाइव करना भी इजी हो जाएगा बिकॉज यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस ऑन माइक्रोसॉफ्ट। आप जो भी सपोर्ट कर रहे हो कंपनी में वो सब माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड है, तो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। सो सर्वाइवल विल बी इजी। To get the entry level positions in the cloud will also be easy with the Azure. So that is why, just to considering all the profile requirements, we have structured our course. हमने अपना कोर्स करिकुलम स्ट्रक्चर किया है इस वजह से, so that anyone who wants to start their journey in the Azure cloud domain, not AWS, AWS के लिए नहीं, if anyone wants to start their journey in the Azure cloud domain, then we have structured our course as per the market demand. क्योंकि मैंने बताया आपको क्लाउड में जाने से पहले कुछ चीजें आनी चाहिए, सो लुकिंग एट दोज फैक्टर्स वी हैव स्ट्रक्चर्ड अवर कोर्स. सो what are we going to cover in our curriculum? हम क्या करवाने वाले हैं आपको? So it's not going to be the cloud administration training, it will be the combination of a lot of things. क्योंकि जब आप जॉब पे निकलोगे, क्लाउड सीखना इज नॉट ए बिग डील, यू कैन डू इट फ्रॉम द यूट्यूब. यूट्यूब में जाओ, AWS सीखना है, एज्योर सीखना है, देर आर अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट अवेलेबल, कहीं से जाके कुछ भी पढ़ लो. बट जॉब they are not going to offer you, they will not make you job ready in the market. यूट्यूब के कंटेंट उन लोगों के लिए ठीक है हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट डोमेन. जैसे मेरे जैसा बंदा, आई एम वर्किंग ऑन द क्लाउड, सो इफ आई वांट टू इंक्रीज माय नॉलेज आई कैन गो टू द यूट्यूब, आई कैन इनहेंस इट. बट फॉर द पीपल हु आर इन ए डिफरेंट डोमेन लाइक यू, आप लोग सपोर्ट पे हो, नाउ यू वांट टू गो टू द क्लाउड, सो दिस काइंड ऑफ कंटेंट ऑन द यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, दैट इज योर अल्टीमेट गोल. So, in order to get the job, what we have done, we have included 3 modules in our course. हमने 3 मॉड्यूल डाले हैं एक तो अपने कोर्स में. It's not going to be the normal Azure training. There will be 3 certification contents that we will cover. The first one will be AJ 900. It is going to give you the knowledge about Azure Cloud fundamentally. Azure में क्या क्या सर्विस होती है, Azure Cloud क्या होता है, क्लाउड क्यों, उसके क्या बेनिफिट्स है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन AJ 900. Another module is AJ 104, which will make you qualify for the Azure administration jobs. इसके बाद Azure के क्लाउड्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इसके सर्वर्स को कैसे मैनेज करते हैं, नेटवर्क्स कैसे मैनेज करोगे, स्टोरेज कैसे मैनेज करोगे, हाउ विल यू मैनेज द सिक्योरिटी ऑन द क्लाउड, these things will be discussed under this. And then we will move to AJ 400, which is DevOps in Azure. Because if you go to any job nowadays in the cloud, they are asking for the automation skill. पहले क्या होता था, 2-3 साल पहले, it was easy to directly get the cloud job, but now the industry dynamics have been changed. आज की डेट में अगर आप क्लाउड पे जॉब लेने जाओगे तो आपसे ऑटोमेशन की स्किल मांगेगा कि क्लाउड में ऑटोमेशन कैसे करोगे आप, हाउ विल यू क्रिएट द सर्वर ऑटोमेटिकली. मेरे को अगर 100 सर्वर्स बनाने हैं, आई वांट टू क्रिएट 100 सर्वर्स राइट नाउ, सो आई डोंट वांट टू डू इट थ्रू क्लिक्स. मैं क्लिक कर करके क्रिएट नहीं करना चाहता, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम. सो हाउ विल यू डू द ऑटोमेशन दैट 100 सर्वर्स विल बी क्रिएटेड विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, क्योंकि रोबोटिक्स का जमाना है. सो दैट ऑटोमेशन इज इन द डेवऑप्स. सो डेवऑप्स इज कंपल्सरी नाउअडेज इन ऑर्डर टू गेट इनटू द क्लाउड में जाने के लिए. So this course will be the combination of 3 Microsoft modules: AJ 900, AJ 104 and AJ 400. And this will be in the sequence. पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, then फिर AJ 400 पे मूव होगा. ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये पढ़ोगे, ये तीनों एक ही का कॉम्बिनेशन होगा. So if you guys will take the admission in Azure DevOps curriculum, so it will be the combination of these 3. उसमें आपको तीनों चीजें ही पढ़ाई जाएगी. जिस कोर्स के डेमो में आप बैठे हो, Azure DevOps, it will cover 3 curriculums, क्योंकि डायरेक्ट हम DevOps नहीं पढ़ा सकते बिफोर Azure administration skills. In addition to that, there will be basics of Linux. मतलब Linux में नॉर्मल फाइल फोल्डर्स कैसे मैनेज करते हैं, यूजर कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, नॉट एडवांस, क्योंकि वो AWS में ज्यादा एक्सपर्टीज मांगते हैं. सो नॉर्मल बेसिक लिनक्स विल बी कवर्ड. Terraform is highly required nowadays. जो ऑटोमेशन की मैं बात कर रहा हूँ ना, दैट इज थ्रू द Terraform. 100 सर्वर्स की डिप्लॉयमेंट एक साथ यूजिंग द Terraform.
सो Terraform will be discussed in very detail, पूरे डिटेल में इसका प्रैक्टिकल डिस्कस होगा along with the course. Kubernetes is the famous technology in the market nowadays in the DevOps and cloud. So बिना Kubernetes के आज की डेट में हाई पेइंग जॉब लगना बहुत मुश्किल है. So this will also be discussed. एक एग्जांपल देता हूं आपको. You all know about Netflix. So Netflix and all the OTT platforms, Disney, Hotstar, Amazon Prime, they are running on the Kubernetes platform. So Kubernetes is must. If someone is looking for the high paying job in DevOps and cloud, तो Kubernetes भी कवर किया जाएगा. It is again the part of the curriculum. So ये तीन कोर्स के अलावा Terraform, Kubernetes will be there. Linux OS administration skill will be there. Then we will be talking about the monitoring and logging systems. Monitoring कैसे सेटअप करते हैं कंपनी में for the Azure environment and for the DevOps also. How will you set up the logging system? These all things will be discussed practically. तब जाके आपकी जॉब लगेगी. If you are practical enough, then you will get the job in this. तो ये सब चीजें मैंने बता दी है. 3 सर्टिफिकेशन कवर होंगे. Additionally, Terraform, Kubernetes, monitoring systems are going to be covered. Now, who can attend this course? ये कोर्स किसके लिए है? It's not for everyone. It is only for those people who have the fundamental knowledge of operating system. मतलब बंदे को विंडो या तो लाइनक्स में से कोई एक ओएस चलाना आता है. चलाना आता है इन द सेंस उसको फाइल फोल्डर बनाना आता हो, उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आता हो, लॉग इन लॉग आउट करना आता हो, मतलब कंप्यूटर चलाना आता हो. इफ यू आर जीरो इन यूजिंग द सिस्टम्स, दिस कोर्स इज नॉट फॉर दोज पीपल. सो फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी एक ओएस की, चाहे विंडो आता हो चाहे लाइनक्स आता हो. बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग की नॉलेज मीन्स आईपी कैसे चेक करते हैं सिस्टम पे, हाउ टू चेक द मैक एड्रेसेस, आईपी असाइन कैसे करते हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए. बाकी इफ यू नो दिस, देन एनी फ्रेशर who is interested in the course or any experienced person who wants to switch the job in the cloud industry, जिसको क्लाउड में जॉब चाहिए, दिस कोर्स इज फॉर दोज पीपल. चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो डेस्कटॉप सपोर्ट में हो, सर्विस डेस्क हो, नॉक पे हो, नेटवर्क इंजीनियर हो, सर्वर एडमिन हो. इफ यू वांट टू एंटर इनटू द क्लाउड एंड डेवऑप्स डोमेन, दिस कोर्स इज फॉर यू. बट उससे पहले इतनी चीजें आनी चाहिए, मिनिमम इतना तो आना चाहिए. और ये सब सबको आता है बिकॉज यू गाइज आर देयर इन द सपोर्ट जॉब. तो सपोर्ट पे इतना काम तो आप करते ही हो ऑन द रेगुलर बेसिस. बिल्कुल फ्रेशर बंदा होता, कोई होता कि स्कूल से निकल के आया हूँ, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज द कंप्यूटर, आई डोंट नो हाउ टू चेक द आईपी, आई विल नॉट रिकमेंड दिस कोर्स फॉर दोज पीपल, क्योंकि उससे पहले बेस पढ़ के आओ. बट आप लोगों को एक्सपोजर है, यू गाइज आर देयर इन द आईटी इंडस्ट्री, सो दिस इज फॉर यू, सो यू कैन डू इट. इसके बाद आप किन किन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे? सो दीज आर सम ऑफ द प्रोफाइल्स for which you will become eligible for. So you can apply for the cloud administrator roles, you can apply for the Azure administrator roles, cloud ops engineers, DevOps engineers and site reliability engineers. So इनमें से कोई भी एक प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हो. You will be eligible for everything. But it depends on your caliber कि आपने कितना पढ़ लिया है. अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया है एंड लेवल तक, देन यू कैन अप्लाई फॉर द कोर डेवऑप्स रोल. उससे पहले तक अगर आपका डेवऑप्स थोड़ा हल्का है, इफ यू आर एवरेज इन द डेवऑप्स इन द ऑटोमेशन बट योर क्लाउड इज वेरी ग्रेट, देन यू कैन अप्लाई फॉर द क्लाउड एडमिन रोल्स. सो दिस course curriculum will make you eligible, it will make you job ready in the open market for the cloud only. Our target is cloud, only Azure cloud and DevOps. उसी जॉब को टारगेट करके ये कोर्स बनाया हुआ है, उसी को स्ट्रक्चर करके बनाया है. सो ऐसा नहीं है कि इसको करके AWS पे जॉब ले लोगे, नो, बट यू विल बी एबल टू टेक द जॉब इन द Azure domain. Another thing would be, I am getting a lot of questions in the message box, so I will take your questions. 5 minutes मेरे बचे हुए हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा अभी. Now in the eVision, we are in the eVision platform. So in the eVision platform, if you want to do this course, अगर आपको ये कोर्स करना है जो मैंने अभी आपको समझाया, so we have 2 modes available. इस कोर्स को करने के हमारे पास 2 modes available है. First mode is the live classes. In the live class,
देयर विल बी वीकेंड शेड्यूल्स, सैटरडे संडे को क्लासेस होती है, नॉट ऑन रेगुलर, इट विल बी ओनली ऑन सैटरडे संडे। यू गाइज विल कम ऑन द टाइम, जो भी टाइम आपको मिलेगा उस टाइम पे क्लास होगी। आई विल बी टेकिंग द क्लास, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद मी। टेन्योर वुड बी 5.5 मंथ्स, 5.5 महीने का टेन्योर रहेगा पूरा। इंटरव्यू प्रिपरेशन, resume modification, projects and course, everything. I will discuss about that also. Another mode is the LMS platform. We have the recorded course available in the LMS platform. पूरे कोर्स की जो रिकॉर्डिंग होती है, इट्स नॉट द क्लास रिकॉर्डिंग नहीं। जैसे आप लोग यूडीमी के थ्रू कोर्स कर रहे हो मान लो, सो दे हैव द एलएमएस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। तो उससे बेटर, उससे रोबस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वेयर वी हैव द क्लास करिकुलम अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है। सो अनदर फॉर्मेट इज थ्रू द वीडियो। So you can opt for videos also, you can opt for the live classes also. लाइव क्लास में जो इंटरेस्टेड है वो लाइव क्लास में आ सकता है, जो वीडियोस में इंटरेस्टेड है रिकॉर्डेड सेशंस में एलएमएस के ऊपर, वो उसमें स्विच कर सकता है। अब दोनों में क्या क्या डिफरेंशिएशंस है, किसके लिए रिकॉर्डेड कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा, किसके लिए लाइव ज़्यादा बेटर रहेगा, दैट आई विल डिस्कस, लेट मी डिस्कस दैट वन। सो देखो, लाइव क्लास तो उनके लिए ठीक है हु आर फ्लेक्सिबल विद द टाइमिंग्स, मतलब जिनके पास सैटरडे संडे ऑफ है। If you are free on Saturday, Sunday, if you can manage the time, Saturday 2 hours, Sunday 2 hours, then live class is for you. तब तो आप आओ, interact with me. Recorded class is also by me. That is my lectures. वो भी मेरे ही lecture है. So you will be getting my lectures only. जिनके पास time की flexibility नहीं है, some of you might be having the rosters. Saturday, Sunday को भी shift लग जाती होगी. So you don't have the availability. So if you don't have the availability, but करना तो है, because you want to switch to the cloud. So for those people, the LMS course will be great. इसमें आपके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जब मर्जी लॉग इन करो, वेन एवर यू हैव द टाइम, इन द ऑफिस, इन द कम्यूट, जब आप कैब में ट्रेवल कर रहे हो, और इन योर होम, जस्ट ओपन इट एंड लर्न इट, डू द प्रैक्टिस। जब टाइम मिले तब कर सकते हो। इन द लाइव क्लासेस द टाइमिंग विल बी फिक्स्ड, जो भी टाइम आपको मिलेगा उसी टाइम पे आपकी क्लासेस होगी। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी मच देयर इन द एलएमएस कोर्स। वीडियोस वाले कोर्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम को लेके और डिमांड को लेके, आप किसी भी टाइम पे उसको कर सकते हो। लाइव क्लासेस में टाइम फिक्स होगा तो उसी टाइम पे आपको आके क्लास करनी पड़ेगी। इंटरेक्शन लेवल, इंटरेक्शन मतलब ट्रेनर से कितनी बातचीत कर पाओगे। सो इन द लाइव क्लास द इंटरेक्शन लेवल विल बी हाई, क्योंकि आप लोग क्लास में रहोगे, मेरे साथ रहोगे, सो एनी टाइम इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन। In the recorded session in the LMS, again there will be interaction, but that will be on the weekly basis. LMS वाले सेशन में क्या होता है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, यू कैन, इफ यू आर इन द डाउट, अगर आपको कोई डाउट आता है, और इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनी प्रैक्टिकल, सो यू कैन डिस्कस लाइव विद मी ऑन वीकली बेसिस। अगेन सैटरडे संडे को आपको स्लॉट मिलेगा, जो भी स्लॉट आपके लिए अवेलेबल होगा, अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी देयर विल बी स्लॉट ऑन सैटरडे संडे। उसमें आप लोग आके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो इफ यू आर इन एनी डाउट। प्रैक्टिकल करने में कोई डाउट आया, यू कैन डिस्कस विद मी। टेक्निकली देयर इज एनी डाउट, यू कैन डिस्कस विद मी। सो इंटरेक्शन लेवल विल ऑल्सो बी देयर, यहाँ पे भी इंटरेक्शन लेवल होगा ऑन द वीकेंड बेसिस, और यहाँ पे भी वीकेंड बेसिस में है, बट हियर यू आर इन द लाइव क्लास, तो लाइव क्लास में आप कभी भी मेरे से टॉपिक चलते चलते पूछ पा रहे हो। यहाँ पे आप पहले वीडियोस देख रहे हो, देन इफ देयर इज एनी डाउट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, तो आप नोट्स बना के मेरे से आगे पूछ रहे हो। तो बोथ द वेज आर ओके, जिसको जैसे कन्वीनियंट लगता है। सो द स्टूडेंट्स who prefers a classroom live training, the live classes are for those people, group participation, जो भी बातचीत वगैरह है लाइव क्लासेस में। एंड द पर्सन हु इज वेरी फास्ट लर्नर, जिसको चाहिए कि यार मैं 5.5 महीने नहीं देना चाहता, आई डोंट वांट टू गिव 5.5 months ऑन वीकेंड, आई वांट टू कंप्लीट द एज्योर कोर्स लेट्स से विद इन 2 months और 2.5 months और 3 months, मतलब जितनी मेरी स्पीड है, मैं एक दिन में 3-3 घंटे पढ़ के कोर्स खत्म कर दूंगा। सो इफ यू आर ए फास्ट लर्नर, यू वांट टू गेट द जॉब इन द अर्ली फेज, जल्दी जॉब चाहिए, वेट नहीं करना, टाइम नहीं है, देन यू कैन गो विद द एलएमएस ट्रेनिंग ऑल्सो, क्योंकि उसमें पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास है, जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास द कंटेंट लॉक्स विल बी प्री डिसाइडेड,
कि मैं इस दिन पे ये टॉपिक कराऊंगा. सो देयर विल बी कंप्लीट 5.5 months. यहाँ पे आपके ऊपर है, कंप्लीट इट विद इन 1 month, 2 month, 3 month, दैट्स योर चॉइस. 1 साल में खत्म करना है, 1 साल में करो. देन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, आपको क्या क्या मिलेगा. सो दोनों ही कोर्सेज में आपको जितने भी कोर्स की रिकॉर्डिंग है वो तो मिलनी ही मिलनी है. जितने भी नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन बोथ द फॉर्मेट. चाहे आप ये वाला करो एलएमएस पे, चाहे आप लाइव क्लास करो मेरे साथ, आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स, lab setups, assignments, projects, everything will be shared with you. It will be provided to you. So let me show you some of the material कि किस टाइप से क्या मिलता है. सो लाइव क्लास वालों को तो हर क्लास की वीडियो मिलती है. इन केस यू मिस इट, सो यू कैन रेफर द वीडियोस. along with the videos you also get the notes. so हर टॉपिक के आपको नोट्स मिलते हैं, उसके असाइनमेंट्स, उसके प्रोजेक्ट्स, दैट यू हैव टू डू. और जो एलएमएस पे कोर्स कर रहे हैं उनके पास वीडियो तो ऑलरेडी है ही. apart from that they get the notes of every topic, हर टॉपिक का नोट, important assignments and lab setups. so उनको भी सेम चीजें मिलेगी. one important part in the LMS training would be that you will have the access of all the videos at one place. मतलब पूरा का पूरा एज्योर का कोर्स आपके पास एक ही बार में अनलॉक होके आ जाएगा. सारी वीडियोस एक ही साथ अवेलेबल हो जाएगी. लाइव क्लास में टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो शेयर होगी. जैसे ही आप लाइव क्लास खत्म करोगे उस क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग हो रही होगी. दैट विल बी शेयर्ड विद यू. सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस. बहुत सारे डिफरेंसेस है. तो जिसको लाइव क्लास में कन्वीनियंट है दे कैन कम. जिसको एलएमएस पे कन्वीनियंट है दे कैन डू दैट वे ऑल्सो. सो डिपेंड्स. आप चाहो तो इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन डिसाइड विच वन इज मोर फ्लेक्सिबल टू यू. दोनों ही फॉर्मेट में आई विल बी द ट्रेनर. डाउट सेशन मैं ही लूंगा, एलएमएस की सारी रिकॉर्डिंग वीडियोस मेरी ही है, लाइव क्लासेस भी मैं लूंगा. सो इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम गिविंग यू द डेमो एंड समवन एल्स इज गोइंग टू टेक द सेशन. नो, टुडे इज माय कमिटमेंट. आई विल बी टेकिंग द सेशन इन बोथ द फॉर्मेट्स. सो एंगेजमेंट दोनों लेवल पे ही रहेगा हमारा. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी तरफ जा रहे हो बिकॉज ऑफ योर फ्लेक्सिबिलिटी. आई एम नॉट सेइंग दैट गो विद LMS. आई एम नॉट सेइंग गो विद लाइव. आई एम गिविंग यू द प्रपोजल ऑफ बोथ द सिनेरियोस. आपको क्या फिट बैठता है एज पर योर जॉब, एज पर योर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन चूज. वन पॉइंट फ्रॉम द फाइनेंस परस्पेक्टिव वुड बी LMS course is around 10 to 20% less in the fee as compared to the live. लाइव क्लास की जो भी फी है उससे 10 to 20% का जो मार्जिनल डिस्काउंट है वो एलएमएस के ऊपर है. तो ये मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया फॉर द फाइनेंस परस्पेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग दे आर नॉट दैट मच लेट्स से इनटू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. सो उनको थोड़ा सस्ते में भी चाहिए. सो दिस वे ऑल्सो यू कैन डिसाइड. बट फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर द डिफरेंशिएशंस. ये सब डिफरेंसेस है. अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि क्या करना है. और ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, गो टू योर रिक्रूटर जिसने आपको इस डेमो में भेजा है, आप उनसे जाके भी डिस्कस कर सकते हो. दे ऑल्सो हैव द क्लैरिटी अबाउट इट. तो लाइव क्लासेस में 5.5 मंथ्स की ड्यूरेशन होगी ऑन सैटरडे संडे. 2 आवर्स की क्लास होगी ऑन सैटरडे, 2 आवर्स ऑन संडे 2 आवर्स. जो भी टाइम बनेगा उस टाइम पे सेशन होगा. मॉर्निंग का और नाइट का सेशन बनता है जनरली 2 फेजेस में. तो जो भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी अकॉर्डिंगली इट विल बी कम्युनिकेटेड. एलएमएस में आपकी मर्जी है, आप जब मर्जी कोर्स स्टार्ट करके पढ़ते रहो, सीखते रहो एंड कम टू द डाउट सेशन लाइव एंड वी विल डिस्कस. नाउ आई विल open the form for some of the questions for 5 to 10 minutes. So I am going to unmute the candidates. One by one you can come up with your question. कुछ रह जाता है तो आप एडमिन से भी डिस्कस कर पाओगे. So अभी किसी को कुछ पूछना है so you guys can discuss. Sir, LMS language. It will be in English. In English and Hindi, in both the languages it is available. So whatever would be the convenient language, you can pick it up accordingly. Like this session. This session is the mix-up kind of language. I was using Hindi and English both. So in the LMS, it is available in English also, and it is available in the mixed language also. So if you are comfortable only in the English, you can go with the English version. That's my recording again. English is also spoken by me, and mixed language is also used by me. So in both the formats, I will be the speaker. सर रिकॉर्डेड कब का है? regarding placement.
Yes, after the course completion, there will be placement assistance provided. So resume modification will be provided by the team of Evision. Then placement support will be provided. Even I will also give you some tips. I will also guide you how to figure out the job. तो मैं भी आप लोगों को गाइड करूंगा कि कोर्स के चलते चलते कैसे जॉब फिगर आउट करोगे आप लोग। ठीक है, वैसा है सर। लेकिन सर जैसे कि अभी हम लोगों को डेस्कटॉप सपोर्ट में मिला, जैसे कि सपोर्ट फॉर जॉब, जैसे कि कॉल्स आ रहा था, सेम वैसे ही आएगा? हाँ वैसे तो आएगी ही ना। नहीं नहीं, बाकी पूछना पड़ा। नहीं नहीं वो ओके। आएगी। वो आएगी और रिज्यूमे आप से लोग रिगार्डिंग जो भी सपोर्ट है सर दैट विल मेरे का आल्सो एक बी क्वेश्चन था। प्रोवाइडेड। तो आप लोग यस हेलो। प्रोफाइल पुश करोगे? हेलो। यस। सर मैं निरंजन बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन था, ये डॉट नेट और कुबरनेट को पूरा ये होना चाहिए क्या, डीप नॉलेज होना चाहिए क्या? देखो डॉट नेट तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उस पर डीप नॉलेज नहीं चाहिए। डॉट नेट इन द सेंस जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं ना मोस्टली विंडोज में वो डॉट नेट में हाँ। प्रोग्राम होती है। तो वो इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो पता होनी चाहिए। वो सब मैं बताऊंगा डॉट नेट कैसे यूज करना है, प्रोग्रामिंग नहीं। वी डोंट नीड एनी कोडिंग लैंग्वेज नॉलेज इन द कोर्स। और एक क्यूबरनेटीज क्वेश्चन जो वो है, था। क्यूबरनेटीज पूरा डेप्थ में नहीं क्योंकि क्यूबरनेटीज एक अलग डोमेन है। बट क्यूबरनेटीज आपको 70% आना चाहिए क्लाउड और डेवॉप्स में जॉब लेने के लिए। दैट आई विल टीच वो यू। आप बताइएगा ना क्लासेस में। हाँ वो सब तो मैं पढ़ाऊंगा ना। एक वो क्वेश्चन था इसमें, इसके लिए सर्वर का भी नॉलेज आना चाहिए क्या? बेसिक सर्वर, सब बेसिक सर्वर आता है बट डीप लेवल का सर्वर का नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जितना चाहिए था वो मैंने लिख दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है हेलो सर, सर। थैंक यू। इसके बाद जो हम लोग को प्रोफाइल मिलेगा तो वो एक्सपीरियंस बेसिस पे होगा या फ्रेशर होगा सर? वो एंट्री लेवल प्रोफाइल्स होगी। मतलब ये जो जॉब है ना जितनी मैंने यहाँ पे प्रोफाइल्स लिखवा रखी है दीज आर द हम्म। एंट्री लेवल प्रोफाइल्स। एंट्री लेवल का मतलब है ये स्टार्टिंग रोल्स है क्लाउड और डेवॉप्स में जो स्टार्ट ओके। करते हैं। तो इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स ओके, एंट्री लेवल रोल। ठीक है सर। ठीक है। और जो प्रोफाइल हम लोगों का जैसे कि पुश होगा, जैसे कि अभी डेस्कटॉप सपोर्ट में हुआ था, हम्म। वैसे ही रेगुलर कॉल्स आएगा हम लोगों को सेम? हाँ जब कोर्स कंप्लीट होगा देन। और बाकी ओके। कोर्स के बीच में भी मतलब अगर आपने AJ104 प्लस डेवॉप्स के कुछ कंटेंट पहले कवर कर लिए हैं देन हम्म। आई विल आल्सो गिव यू सम टिप्स एंड रिकमेंडेशन कि आप लोग खुद से भी कैसे जॉब सर्च करोगे। सो यू विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग द कॉल क्योंकि ये इतनी हाई इंटेंस टेक्नोलॉजी है कि अगर आपने इसका रिज्यूमे में डाल दिया, रिज्यूमे के फॉर्मेट्स मैं दूंगा आपको, तो अगर आपने डाल दिया तो आपको वैसे भी कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके हेलो ओके। सर। हेलो। हेलो सर। यस After हेलो। यस hello यस sir. टेल मी। After completing the course, are you going to provide a Vision course complete certificate or Microsoft certificate? For Microsoft certification, there will be additional charges if you want to do. So that is Okay. $80. So $80 is around 5,000 rupees if you Okay. want to do it, but you don't need it right now. Okay. It depends upon company to company. So I would recommend first get a job. सबसे पहले job ले लो entry level पे. Then for the next level, for the promotions and for the salary hike, then do the global certification. So अभी करने Okay. की कोई requirement नहीं है। सर For that, we need ग्लोबल to सर्टिफिकेशन write any So exam. right now we are not getting the एक क्वेश्चन certificate. वो था, विदाउट ग्लोबल सर्टिफिकेशन का जॉब मिल जाती है मार्केट में? देखो अगर डेवॉप्स किया हुआ है, क्यूबरनेटीज करी हुई है तब तो मिल जाती है। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कहती है कि हाँ ग्लोबल सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। तो उनके लिए फिर करना चाहो तो कर सकते हो, बट वो बहुत ही लिमिटेड है। जैसे TCS विल आस्क यू फॉर द ग्लोबल सर्टिफिकेशन, HCL विल आस्क यू फॉर द ग्लोबल सर्टिफिकेशन। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर नहीं करोगे तो जॉब नहीं लगेगी। यू विल गेट द जॉब। कर लोगे तो कॉल्स बढ़ जाएगी, नहीं करोगे तब भी जॉब लगी जाएगी। Hello. क्लियर? सर इस कोर्स में सर्टिफिकेशन के बाकी लिए के अलग टूल्स से भी एग्जाम पढ़ाए देना जाएंगे? होता है क्या? एक एक करके कोई पूछ रहा था कोर्स में क्या क्या मिलेगा। हेलो सर हेलो इस कोर्स में बाकी के टूल्स भी पढ़ाए जाएंगे? सर जैसे कौन जेनकिंस हो से? गया, एक मिनट एक मिनट एक एग्जाम मिनट, देना कौन होता से है अलग कौन से से क्या? टूल्स? सर जैसे जेनकिंस हो गया, गिटहब, जीरा, यस ये यस सब भी यस पढ़ाए जाएंगे? यस यस। और सर कॉन्फ्लुएंस, जीरा, गिटहब, ये सब सिलेबस आपको शेयर कर दिया जाएगा। जेनकिंस, एनसिबल, टेराफॉर्म, क्यूबरनेटीज, एजोर रेपो, CI/CD पाइपलाइन, तो ये सब पढ़ाया जाएगा। यस। हेलो सर सर। पाइथन प्रोग्रामिंग भी? पाइथन नहीं, पाइथन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एजोर डेवऑप्स जॉब। डेवऑप्स के लिए सर पाइथन भी तो, ना पाइथन वो हो गया, बैच AWS के स्क्रिप्टिंग लिए, हो गया। AWS के लिए, एजोर में नहीं चाहिए। पावर शेल हेलो। तो कंपलसरी है ना? पावरशेल या टेराफॉर्म में से कोई एक आना चाहिए आपको। सो आई विल टीच यू टेराफॉर्म बिकॉज टेराफॉर्म इज हाई इन डिमांड एज कम्पेयर टू द पावरशेल।
पावर शेल में कराऊंगा, बट वो बहुत डेप्थ में नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम टेराफॉर्म को बहुत डेप्थ में लेके जाएंगे, क्योंकि टेराफॉर्म ज़्यादा डिमांडेड है मार्केट में, और वो मतलब किसी भी क्लाउड के साथ फिट हो जाता है। सर कैन यू क्लियर माय डाउट सर यस प्लीज? यस यस, टेल मी। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये लाइव क्लास होगी उसका हमें रिकॉर्डर भी मिलेगा? यस, मिलेगा। फॉर एवरी क्लास कितने यू विल साल के गेट लिए द होगा सर? रिकॉर्डिंग। कितने साल के लिए वैलिड होगा सर? I think that is valid for 6 months. The retention period will be 6 months after the course completion. लाइव क्लास के लिए पूछ रहे हो ना? लाइव हाँ क्लास हाँ के हाँ, 6 मंथ्स लाइव क्लास तक, के। और जो LMS पोर्टल है उसका लाइफ टाइम है। अच्छा, एलएमएस का लाइफ टाइम। राइट। और लाइव क्लासेस ओके। की कोर्स कंप्लीशन और के सर बाद ये 6 मंथ्स। सर्टिफिकेशन के लिए, ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए अलग से कोई एग्जाम होता है क्या? यस, ग्लोबल सर्टिफिकेशन का एग्जाम होता है अलग से। अच्छा, तो उसे एग्जाम हमें क्लियर करना होगा, देन हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट? राइट 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 ओके राइट। सर। Sir, for placements, सर एक क्वेश्चन और था सर, इसमें जाने के लिए मतलब नेटवर्किंग जैसे सीसीएनपी पीसीएनपी ये सब भी आना चाहिए क्या? नहीं, वो तो नेटवर्किंग का डोमेन हो गया ना फिर। अच्छा। क्लाउड तो एक नया डोमेन हो गया, तो क्लाउड पे जाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो है आपका टेराफॉर्म, क्यूबरनेटीज, ओएस नॉलेज, ओएस में विंडोज सर्वर और लाइनक्स का बेसिक, इसके बाद हाँ, एज्योर का क्लाउड और डेवऑप्स के टूल्स। ओके। Sir, this course is not about cloud security, right? Cloud security will not be covered in the depth, because for the cloud security there is AJ 500 course. So this is going to cover the security, but if you are totally looking for the cloud security job, then this course is not for that. So cloud Okay. security will be covered, but it will not be into the depth level. Depth level security is the part of AJ 500. So the people who are working as a security engineer in cloud, Azure security administrators, they do AJ 500 after AJ 104. So if you will do that, still you will not be eligible for the jobs in the security domain, because they need the real experience on the cloud. So security पे job ले नहीं पाओगे फिर आप, कर भी लोगे तो। Okay. And सर what मेरा is the salary starting sir, salary for this placement purpose, private you job? guys going to upload the resume in Naukri, or any companies particularly tie up with Avision? Resume upload in the Naukri will be done by you, because that is your portal. So how we can Understand. upload? Okay. And there are some placement tie-ups also, just like in the support profile also you got some of the job opportunities. So Okay. same thing is being applied here as well. There will be job assistance. So once Can you there will please be name some opportunity, companies? you can discuss with the admin, because I'm not the full-time employee over here, so I don't know Okay. in depth. तो वो बता पाएंगे आपको Okay. कि Thank प्लेसमेंट you. टीम में क्या चल रहा है। No worries. Okay. Or for So doing what is the practice starting on salary? cloud. Basic Yeah, the idea. salary will be in the range of 7 to 10 LPA, depending upon your profile, depending upon your location. So मतलब average मान के चलो आप 7 LPA का CTC लग जाता है, if you have done the course very rigorously. ऐसा नहीं है कि पढ़ के चले गए, मतलब इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए, प्रैक्टिकली चीजें आनी चाहिए. So this salary you can expect after DevOps and Terraform, Kubernetes, etc. तो अगर ये चीजें अच्छे से कर ली है, then you can expect this salary. Without 7 to 10 experience, तक लग जाता है. yes sir. Without experience, we have the 7 LPA, right? हाँ, विदाउट एक्सपीरियंस लगेगी ना, For the because experience, that is the who have the before networking experience? networking experience is not considered here, because cloud is a fresh domain for you, right? Okay. I am the cloud guy. Let's suppose I am working in the field. So if you are on my level, let's say you have become subject matter expert or architect or site reliability senior engineer, so you can expect the package more than 25 LPA, 25 LPA, 30 LPA, 40 LPA, like that. But that's not for you. That is for the people like me who are already into that domain. Okay. Okay, so once you will have some experience in the real cloud, then you can expect, like after 1 year or 2 years, you can expect around the package of 18 to 20 lakh if you have the real experience on the real cloud. Then, Oh. Hello, and sir. if you reach out Placement to as the a fresher. architect level position, then the salary can go up to 35 lakh per annum, 40 lakh per annum. But that's not easy. That requires experience, dedication, and you have to do some certifications also.
like हेलो Microsoft. Sir, for अगर doing मुझे the Sir, if practices on Sir, cloud, you are going to provide the hello. access from your side, or we Hello. have to create an account? You have to create your own cloud account. But the person who is already having an account and the free tier account is expired, what did? Then you can create another account. The who free trial is account is this? sufficient. हेलो And What did DevOps अगर expired? account मुझे is free. For DevOps account, there is no charges again. That is also free. And free trial account also you can create for the course. हेलो But it That required is another sufficient. credit card. अगर मुझे Debit card, डेटा debit, इंजीनियरिंग wait, करना है wait, तो wait. You can use debit card also. Debit card can also be used for the Azure portal creation. Earlier, हेलो the debit card was not used, but now debit card and credit card both can be used. So we have इफ to मुझे arrange डेटा from our side इंजीनियरिंग जाना only. है तो डेटा इंजीनियर में जाने से पहले आपको एक तो एसक्यूएल सर्वर आना चाहिए, एसक्यूएल पे एक्सपोजर होना चाहिए, फिर आपको नॉन रिलेशनल डेटाबेस पे थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन पाइथन, क्योंकि पाइथन डेटा इंजीनियरिंग का बेस है, तब आप डेटा इंजीनियर का कोर्स करो। एज्योर में भी एक डेटा इंजीनियर होता है, बाकी कॉमन डेटा इंजीनियर भी होता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द डेटा इंजीनियरिंग रोल्स। फॉर स्टार्टिंग दिस इज परफेक्ट राइट दिस कोर्स Yeah, for starting, this course is very much curated accordingly. So अगर cloud में entry लेनी है, if you want to get the entry into the cloud, this course is very much suited. I will The not say that placement you will as become the architect Skills, overnight, but you will get the job. ओके Sir, हाँ hello if we sir. learn if we learn placement that placement as LMS a fresher recording basis every पे day होगा। one hour, how many months it will take? 1 hour if you are dedicatedly learning, so it is going to take around 2 months for the entire course. Hello sir. DevOps also including. Yeah, including DevOps सर also. लाइव क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? देखो फॉर एलएमएस का तो कोई टाइमिंग नहीं है, जब मर्जी खोल के जब मर्जी कोर्स कर लो, जब फ्री मिलो। बट लाइव क्लासेस के जो टाइमिंग होंगे जनरली नाइट में होते हैं आफ्टर 8, एंड मॉर्निंग में होते हैं आफ्टर 10 AM, 2 आवर्स के, 2 आवर्स। सर प्लेसमेंट की गारंटी है? प्लेसमेंट की गारंटी अगर आप डिस्कस मतलब डिटेल में जानना चाहते हो तो एक बार एडमिन टीम से बात करना, बिकॉज दे हैव मोर क्लैरिटी। उनके पास प्लेसमेंट मैनेजर्स बैठे हुए हैं विजन में। सो आई एम नॉट हियर द फुल टाइम एम्प्लॉय, मैं तो कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ यहाँ पे, मतलब आई एम द एम्प्लॉय ऑफ ए डिफरेंट कंपनी। सो वो आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनी में क्या क्या सपोर्ट हम दे सकते हैं। ओके सर। तो प्लेसमेंट एज वो अ ज़्यादा फ्रेशर बेटर बता बेसिस पे पाएंगे। होगा? हेलो सर, प्लेसमेंट यस एज अ यस, फ्रेशर बेसिस पे होगा या हमारा जो भी 2 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है जो अभी? रियल जॉब है वो काउंट होगा। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, मैं गौरव बात कर रहा था सर। हम्म। और सर मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, और लास्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो टेलीकॉम सेक्टर का है सर। तो ये कोर्स मेरे लिए सुटेबल रहेगा सर इन फ्यूचर ग्रोथ व्हाट के यू आर लिए सर? डूइंग राइट नाउ, अभी क्या कर रहे हो? अभी सर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ रैन बैक सपोर्ट रैन इंजीनियर सर। उसमें करते क्या हो? उसमें सर जैसे कि एयरटेल की वेंडर कंपनी है मोबाइल कॉम। उसमें जैसे न्यू साइट का क्रिएशन होता है, न्यू साइट हम लोग क्रिएट करते हैं, या साइट पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, सेक्टर एडिशन हो गए या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, तो वो क्रिएशन करते हैं सर। सीपी वगैरह सेटअप करना, राइट? या राइट सर। आईपी है, जैसे आईपी सीपी हमें पिंग। मार्केशन, डीमार्केशन, एक्सटेंशन। नो सर, नो सर, नो सर। जैसे आईपी पिंग करना, गेटवे उसका रीचेबल आ रहा है नहीं आ रहा है, और गेटवे अगर पिंग नहीं आ रहा तो कहाँ पे उसका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, ये सब चीजें सर। एंड योर डिप्लोमा इज आफ्टर 12th और 10th? 10th किया था सर, अब मेरा 12th है सर, मैं 12th पास आउट हूँ सर। 12th पास आउट हो, उसके बाद डिप्लोमा है, राइट? नहीं सर, 10th पास आउट हूँ, फिर डिप्लोमा है, 12th उसके और बाद किया है 12th भी सर। ठीक है, देन यू कैन कम अप। बट उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी लेस हो जाती है, क्योंकि बहुत सी कंपनी ना मिनिमम ग्रेजुएशन मांगती है, चाहे किसी भी चीज़ में ग्रेजुएट हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, इट डजेंट मैटर, बट मिनिमम ग्रेजुएशन। सो अपॉर्चुनिटीज रहेगी बट इट विल बी लेस। तो पैरेलली अगर डिस्टेंस के थ्रू ग्रेजुएशन भी कर पा रहे हो, देन दैट विल बी मोर यस सर, सुटेबल। अदरवाइज जॉब ठीक है हेलो अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। ओके, हेलो ठीक है सर। मैं थैंक यू मेरा सर, थैंक यू। एजेड सब मेरा एजेड 900 का मैंने ना कोर्स कर लिया था अच्छे से, मींस एक्स्ट्रा में वो ये दो बाकी जो कोर्सेस है ये भी मींस मुझे एलएचएस ये रिकॉर्डेड कोर्स वाला लेना चाहिए या लाइव लाइव क्लासेस वाला? वो तुम देखो कि तुम अवेलेबल हो लाइव क्लासेस के लिए कि नहीं। अगर नहीं हो तो एलएमएस ले लो, अगर टाइम की दिक्कत है तो। अगर टाइम अवेलेबल है, 5.5 मंथ्स ऑन सैटरडे संडे छुट्टी नहीं कर पाओगे
मतलब अवेलेबल रहोगे क्लास के लिए, देन कम विद द लाइव, क्योंकि दोनों फॉर्मेट एक ही जैसे होने वाले हैं। जो एलएमएस की वीडियोस भी है दैट इज बीइंग शूट बाय मी, सो वो बिल्कुल लाइव की तरह ही शूट की गई है। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब शूट करके खत्म कर दिया है। तो जिनके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है दे कैन गो विद द दैट वर्जन एज वेल।